Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to Introduction to Computing and Programming class. Today is lecture number 9. In this lecture we are going to talk about formatted output statements. What is formatting output? Formatting output means we are changing the way of our data to be displayed. That means our data will remain same in our memory, but it will be changed the way it will look like on the screen. So let's just see in an example. The example is if we have a number that is 720, so we can write this 720 number in so many different ways. So the first way is writing simply 720, second is 720.0, third is 720.00000. No matter how many zeros you may add, the number will remain same. 7.2 exponent 2, this is also counted as 720. Then again plus 720.0. So there are many other ways as well. So what we have seen is that the number is 720 is same, and if it is saved at any of the location in C++ or in our computer, so the number will remain same as it is, but it will be just displayed differently in different ways. So this is called this change of display, the change of way of display is called the formatting. Like we are just changing its presentation. Okay, so it will be presented in a way the user wants to see. Okay, so this is called as formatting. That means we are changing the display of the output. The data remains same in the memory, but it will look different on the screen according to the user. This is called as formatting. And now of course we have some commands, inbuilt command in C++, which helps us in formatting our output the way we want. So we have different commands, and to use those commands we have a library called as iomanip, input output manipulators. So basically these formatting commands are also called the manipulators. That means it is manipulating our output, it is changing our output in a way the user want, in a different way, in a different manner. So basically this is called manipulation. So all these commands used for output formatting are called as manipulators as well. So we have to add this library hash, and by writing hash include iomanip, which will have all the commands written inside of it, which are used for output formatting or manipulation. Okay, so let's just see what are those commands. So here is an example of a few formatting commands. Let's just read. One is set wn, show point fixed, set precision n, left, right. So these are the few formatting commands which are most commonly used and which are easier ones as well. So let's just see one by one each of these commands, that what each of these commands do. Okay, so the first command is set wn, bracket n. In this n represents, you can write any integer value over here. Now what is this set w does? Set w means set width. It stands for set width. Now what it does is, set w offers a way of specifying minimum number of spaces to use for each number. Actually what happens is that when we type a number, when we display a number or any data on a screen, what happens is that every data, like for example if I write over here is cout, I am Farah, whatever we write, or any number like if I write like this, if you want to display it like this. So what happens is that the data we have typed is printed as a, like, starting from the first cursor at here, the screen starting, the point where the screen is starting, our data has started written from that point. ठीक है, हम लोग का जहाँ से हमारी स्क्रीन स्टार्ट हो रही थी वहाँ से हमारा डेटा जो था वो प्रिंट होना स्टार्ट हो गया. ठीक है, so this is what if we don't use any output manipulator. But what is this set w? Set w basically decides the width that our data can occupy.
ओके लाइक हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग टेबल जो है वो वर्ड पे हम लोग बना रहे होते हैं, तो हम लोग जब टेबल बना रहे होते हैं तो हम लोग हर कॉलम की हर कॉलम का एक विड्थ जो है वो डिसाइड करते हैं कि ठीक है हमारा जो है फर्स्ट कॉलम है सीरियल नंबर, तो सीरियल नंबर की जो विड्थ होती है वो हम सबसे छोटी रखते हैं। उसके बाद फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स हैं तो रोल नंबर की विड्थ जो है वो हम थोड़ी बड़ी रखते हैं सीरियल नंबर से, यानी कि अगर सीरियल नंबर जो है वो फॉर एग्जांपल क्लास के स्टूडेंट्स के ग्रेड्स की लिस्ट बना रही हूँ, तो द फर्स्ट कॉलम रिप्रेजेंट्स द सीरियल नंबर. In serial number I will just if I have only 45 students or 70 students or below 100 students, so I will just have a two digit space for the serial number column, and then I will have the roll number. For example, if you have a 5 digit roll number with ME with it, so you will just have 7 digit roll number, so I will just spare 7 digits space for the roll number column, and then for the name column I will have a wider column. So this happens is just we are just planning you're just planning the space your data can occupy, right? So this is what we can do it with the help of setw command. Okay, so right now I have not used any of the setw commands, so that's why my data is started printing from the point where my screen is starting. So what if I want to write setw over here? So the method of writing setw over here is, since it's setw is a cout command, so that's why it is written after cout. So if I write cout, set w, after this I have to give the number of spaces which I want to be reserved or left for the number to be printed after it. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो नंबर है ये 1 2 3 4 डिजिट का नंबर है, तो मैं चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए जो है वो 15 डिजिट्स जो हैं 15 स्पेसेस जो हैं वो इसके लिए मैं रिज़र्व कर लेती हूँ. सो व्हाट विल हैपन इज़ दैट कि ये 15 स्पेसेस जो हैं ये रिज़र्व कर लेगा, यानी कि 15 डिजिट की जो स्पेसेस होंगी ये रिज़र्व कर लेगा, एंड देन it will start printing our data not from the point where our screen is starting, but from the point where my last space is left, यानी कि जहाँ पर आखिरी स्पेस जब मैं छोड़ूंगी वहाँ से ये लिखना स्टार्ट कर देगा. सो लेट्स जस्ट सी here without setw it is printing from this point where my screen is starting. So when I have typed setw 15, so let me just write it setw 7 so that I can count the spaces. Okay, so now you can see it is giving me error because it cannot maybe recognize setw. First error is semicolon. It is again giving me error, right? So the error is because I have not added the setw like iomanip library which has this command setw. So I'll add it and load. Now I will run it. So basically now you can see is that the number has 4 digits 1 2 3 4, and the spaces we left for it was 7. So what was happening is that it left 7 spaces for this, and then started from the left it started writing these numbers. So the remaining the four spaces were occupied and the remaining 3 spaces were left blank. So this is what happens when we write setw, and it's not necessary to write setw with a separate cout. You can just write setw in the same cout command with the different separated, like I have told you in the previous lecture 8. So I'm just writing this. ठीक है, तो ये बस इस तरह से भी हम लिख सकते हैं. So if I'll run it, it will be done same. So this is how it appears. ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास cout की कमांड है आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होती है. द फर्स्ट वन इज setw. After this we decide a number
कि जितनी हम स्पेसेस जो है वो लीव करना चाहते हैं फॉर दिस टाइप ऑफ फॉर दिस डेटा फॉर द डेटा जस्ट डिस्प्लेड आफ्टर इट। ठीक है, इसके बाद अगर मैं डेटा टाइप करती हूँ फॉर एग्जाम्पल इस यहाँ पर इसके बाद मैं इफ आई टाइप कैंडल and then if I write another cout like another number, so let's see, so it will not leave spaces for this number. Let's check it out, time to check it out. Okay, now you can see since set w is only for the data just after it। ठीक है, तो इसके बाद सिर्फ ये डाटा था तो इसके लिए इसने सेट डब्ल्यू के लिए 7 स्पेसेस छोड़ दी। लेकिन उसके बाद जब नेक्स्ट लाइन आ गई हमारे पास, नेक्स्ट डाटा जो प्रिंट हुआ, ठीक है, तो उसके लिए हमें सेपरेटली सेट डब्ल्यू लिखना पड़ेगा सो दैट इफ वी वांट दिस डाटा टू बी डिस्प्लेड ओवर फ्रॉम हेयर एज वेल। अगर हम नहीं चाहते तो हमें सेट डब्ल्यू नहीं लिखना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि ये डाटा भी स्पेसेस छोड़कर हमें यहाँ से लिखना स्टार्ट करे, तो हम इस डाटा के लिए भी क्या करेंगे, इससे पहले सेट डब्ल्यू कमांड टाइप करेंगे। ठीक है, सो वी हैव डन इट एंड देन विल जस्ट सी। ओके, सो नाउ यू कैन सी कि फर्स्ट 5 6 7 8 के लिए भी हम लोगों ने सेट डब्ल्यू कमांड लिखी थी एंड देन फॉर द अदर वी हैव रिटन सेट डब्ल्यू कमांड। अब देखिए यहाँ पर स्पेसेस जो है वो कम रह गई हैं क्योंकि ये जो नंबर था वो 1 2 3 4 5 का था। ठीक है, तो 5 नंबर्स का नंबर था एंड देन वी हैव द 2 स्पेसेस लेफ्ट। ठीक है, लेफ्ट ब्लैंक। ठीक है, सो लेट्स जस्ट सी द अदर थिंग्स। ओके, इट इज एक्सप्लेन्ड। ओके, इट इज एस्टेब्लिश्ड प्रिंट फील्ड्स विद अ स्पेसिफाइड विड्थ। जितनी भी विड्थ हम लोग स्पेसिफाई करेंगे उतनी ये फील्ड जो है वो स्टेब्लिश कर देता है। ठीक है, एंड देन इट्स अनदर एग्जाम्पल। लेट्स डू दिस एग्जाम्पल एंड देन वील सी। ओके, हम लोग ये एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। Okay, so let's just format it, change it. Okay, I'm just going to remove this. Okay, so let's just see what this program does. This program displays 3 rows of number. Let's run this program. ओके, सो नाउ यू कैन सी दैट ये यहाँ पे 3 रोज आ रही है नंबर्स की। तो ये पहला नंबर है 287997, तो सेकेंड नंबर इज़ 5837 34716। आप देख सकते हैं कि ये जो 3 रोज हैं ये अलाइंड नहीं है, सिमिलर मतलब सेम, कि हम कहें कि ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है। सो यू कैन सी सिंस वी हैव नॉट यूज्ड एनी सेट डब्ल्यू कमांड, these numbers are not aligned, but what we wanted is कि ये थोड़ा सा, although the data is correct, but what we want is कि our data should be representable। ठीक है, थोड़ा सा presentable data हमारा बने, तो उसको बनाने के लिए what we'll do is we'll just want to align our data into single spaces, columns। so हम लोग इसके प्रोग्राम को रीड कर लेते हैं, num1 num2 num3 num4 num5 num6 num7 num8 and then it's just the display with some spaces। ठीक है, तो ये spaces के लिए थोड़ी सी, अब हम लोगों ने क्या किया कि num1 के बाद भी 2 spaces छोड़ दी, इसके बाद भी 2 spaces छोड़ दी, इसके बाद भी 2, हर वैल्यू के बाद 2 spaces छोड़ दी हम लोगों ने। अब 2 spaces तो छोड़ दी, ठीक है, इसके बाद भी 2 spaces छोड़ी हुई है, इसके बाद भी 2 spaces, I'm not sure if it is 2 spaces or 1, it is 1 space, single space। ठीक है,
तो ये सिंगल स्पेस जो है वो छोड़ी हुई है, लेकिन इससे क्या हुआ कि डेटा जो था वो अलाइन नहीं हुआ। ये देखें, ये जो है 4 डिजिट से उसके बाद स्पेस आई, ये दो डिजिट से उसके बाद स्पेस आई, तो ये अलाइनमेंट नहीं हुई। जबकि नॉर्मली जब हम लोग इस तरह का डेटा लिखते हैं तो हम लोग अलाइन करते हैं कि ठीक है, दिस इज फर्स्ट कॉलम, दिस इज सेकंड कॉलम, दिस इज थर्ड कॉलम. So for that what we'll do is we'll just use the command set w, so set width, that is also called set width, to justify this. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो नंबर्स लेंगे. फॉर एग्जांपल द मैक्सिमम नंबर हियर इज ऑफ 4 digit number, so we'll just spare 6 digits for every number. 6 digit क्यों कर रहे हैं हम लोग डिस्प्ले, क्योंकि 4 बिकॉज द फर्स्ट नंबर इज 4 डिजिट नंबर. तो जब 4 डिजिट नंबर डिस्प्ले होगा तो हमारे पास जो है वो कुछ थोड़ी सी स्पेस बचनी चाहिए, यानी कि 2 स्पेसेस बच जाएंगी, तो फिर नेक्स्ट डेटा जो है वो रिप्रेजेंट हो. फिर इस तरह से हम लोग सेटअप करेंगे ताकि 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 दोनों नंबर्स जो हैं वो एक साथ ना आ जाएं. ठीक है, सो स्पेस हमेशा थोड़े, जितने नंबर्स मैक्सिमम नंबर हो उससे 2 स्पेसेस ज़्यादा दे देंगे तो हमारा डेटा जो है वो खुद ही अलाइन हो जाएगा. अदरवाइज इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यूजर. ठीक है, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज दैट बिफोर डिस्प्लेइंग द num 1 आई एम गोइंग टू राइट set w 6. ठीक है, ताकि 2 स्पेसेस जो हैं वो हर डेटा के बाद बच जाए. अब ये इसको मैं कॉपी कर लेती हूँ और हर जगह पर पेस्ट कर देती हूँ. ठीक है, बिफोर एवरी, ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं रिमूव कर देती हूँ बिकॉज नाउ आई डोंट नीड एनी स्पेस. या फिर इसको भी रहने देते हैं ताकि 3 स्पेसेस जो है हमारे पास बच जाए. लेट्स सी. ठीक है, so this is okay, let's see what happens. ओके, अभी भी हमारा डेटा जो है वो अलाइन नहीं हुआ. उस अलाइन ना होने का रीज़न क्या है कि हमारे पास ये एक्स्ट्रा स्पेसेस भी थी. ठीक है, सो लेट्स जस्ट फिक्स इट आउट. हम लोग इस एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव कर देते हैं. Now we'll see. Okay, so it is still not aligned. Let's see what's the mistake I'm doing. So okay, actually if we observe the data, so let's see our mistake. If you observe our data, this is the 6, our data is not same, right? In every column our data is changing. Okay, I have just made a mistake that I didn't write set w before this. Okay, now let's see. Okay, now there was a little minor mistake that I didn't add an extra set w before this, so that's why the last line was not aligned. But now you can see your data is aligned. Okay, so you can see that the first thing is that first we left 6 spaces for this number. So this the number was 4 digit, so it started from, it left 6 spaces for this, and then from the last space it start typing the number 2897. It left 2 spaces, and then we again 6 spaces, and then at the 6th number it has written 5, and then again 6 spaces, and then 3 spaces were occupied, 3 left. Here 5 spaces
were left and 1 space occupied, and then again here 2 spaces occupied, 4 left, and this is how it works. So it just reserves the number of spaces it has we have defined over here in the bracket, and then start typing from the last digit, right? This. Okay, so this was the thing. So we have just done this example by typing setwn. We have just used it. Okay, now let's see what happens next. Okay, before going to the other command of output formatting, you may have the question that what if our set precision number is lesser than the actual number data displayed over here. For example, कि मेरा जो डेटा था वो 4 डिजिट का डेटा था और मैंने जो उसके लिए स्पेस छोड़ी थी वो थी 3 डिजिट की, तब क्या होता है? तब बेसिकली होगा ये कि हमारा जो सेट डब्ल्यू है उसको ओवरराइड कर देगा, उसके रूल को ओवरराइड कर देगा सी आउट। यानी कि सी आउट जो है वो डेटा को मिस नहीं करेगा। अगर स्पेसेस कम है तो वो सेट डब्ल्यू की कमांड को इग्नोर कर देगा और सिंपली डेटा जो है वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, आई अगेन रिपीट व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड व्हाट आई हैव सेड। द क्वेश्चन इज कि यहाँ तो जितना डाटा था, फॉर एग्जाम्पल 4 डिजिट डाटा था, तो मैंने सेट डब्ल्यू की कमांड में जो नंबर रखा उससे बड़ा नंबर रखा, 6 नंबर रखा। अब मेरा डाटा जो है फॉर एग्जाम्पल बड़ा है और मैं सेट डब्ल्यू में नंबर रख रही हूँ वो छोटा रख रही हूँ, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो मेरा सी आउट है वो इस सेट डब्ल्यू को इग्नोर करके डाटा जो है वो सिंपली रिप्रेजेंट कर देगा। फॉर एग्जाम्पल जहाँ जहाँ मेरा ये 6 है मैं यहाँ 4 कर देती हूँ। यहाँ 4 के बजाय मैं 3 कर देती हूँ, छोटा नंबर रखता है डेटा से। Okay, so now it will ignore the set w and display the data as it is. Let's see. Okay, अब आप देखें कि हमारे पास फर्स्ट नंबर था 3, ठीक है, 3 स्पेसेस थी फॉर दिस, ठीक है। तो 3 स्पेसेस पर पूरा नहीं आया तो उसने एज इट इज नंबर जो है वो टाइप कर दिया, ठीक है। उसके बाद जो डिजिट्स थे वो थे 3 फॉर 5, सो डैट मीन्स के 5 एक डिजिट है और जो सेट डब्ल्यू की विड्थ है वो 3 रखी हुई है, तो डैट मीन्स इट विल लीव 2 स्पेसेस एंड विल टाइप 5 ऑन द लास्ट स्पेस, सो इट हैज़ लेफ्ट 2 स्पेसेस एंड 5 यहाँ टाइप कर दिया। उसके बाद 3 ही डिजिट का नंबर है और 3 ही सेट डब्ल्यू है, तो उसने डायरेक्टली एज इट इज लिख दिया। नाउ लेट्स सी, अगर मैं इसको 3 की बजाय मैं इसको 2 करती हूँ तो क्या ये डाटा को मेरे इग्नोर करेगा? नहीं करेगा। Let me just show you. अब ये देखें, अभी भी इसने वही किया, इसने डाटा को रिमूव नहीं किया, जो नंबर था 837 ही लिखा, सिर्फ इसने सेट डब्ल्यू को इग्नोर कर दिया। ऑल्दो देयर वर 2 स्पेसेस ओनली एंड नंबर वाज 837, सो इट हैज़ जस्ट इग्नोर सेट डब्ल्यू एंड जस्ट सिंपली डिस्प्लेड द नंबर, ठीक है। इसमें भी इग्नोर, क्योंकि सेट डब्ल्यू में जो नंबर है वो छोटा है और डाटा जो है वो बड़ा है, सो इट हैज़ इग्नोर्ड सेट डब्ल्यू एंड सिंपली डिस्प्लेड द नंबर। यहाँ पर सेट डब्ल्यू का जो नंबर है वो बड़ा है और डाटा जो है वो छोटा है, डाटा इज़ 5 ओनली एंड द नंबर इज़ 3, सो इट हैज़ fulfilled the command setw and left the spaces for this number 2, and then setw was, the number in setw was equal to the actual data, the actual number of data in the digit, the actual number of digits in the data, so it has just simply printed the number, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ थी वो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अगर जो है वो हमारे पास सेट डब्ल्यू का नंबर जो है वो छोटा हो और जो एक्चुअल डेटा वो बड़ा हो तो क्या होगा? तो एक्चुअली ये सेट डब्ल्यू इग्नोर हो जाएगा और सी आउट सिंपली उसको डिस्प्ले कर देगा। बट इट इज़ नॉर्मली डन इज कि हम लोग क्या कहते हैं कि सेट डब्ल्यू का जो नंबर होता है वो थोड़ा सा बड़ा रखते हैं जो हमारा एक्चुअल डेटा होता है। इट्स जस्ट दैट कि हमें पता है कि हमें एक कॉलम में स्टूडेंट रोल नंबर्स लिखने हैं। अब वो कॉलम हम छोटा नहीं बनाएंगे, यानी कि स्टूडेंट रोल नंबर फॉर एग्जाम्पल कंसिस्ट ऑफ 7 डिजिट्स, तो हम लोगों ने कॉलम जो है वो
5 डिजिट्स का कॉलम बना दिया, तो हमारा जो C++ अगर होगा तो वो दो नंबर्स को, रोल नंबर के दो नंबर्स को इग्नोर नहीं करेगा, बल्कि कॉलम की विड्थ को बढ़ा देगा, और बल्कि कॉलम जो डिफाइन नहीं करेगा एज इट इज़ रोल नंबर को डिस्प्ले कर देगा. इट विल नॉट इग्नोर द डेटा बट इट विल इग्नोर द कमांड setW if your column width is smaller than the actual data. So here the width is smaller, the actual data was larger, so it has just ignored this setW and simply printed out this number. Okay, so this is all the purpose of setW. It just set the width of the data to be displayed just after it is written. Okay, यहाँ जिसके बाद जो डाटा लिखा है उसके लिए वो उतनी स्पेसेस जो है वो लीव कर देगा. ठीक है, so let's see other types of formatted commands. So the other type is the set precision. So set precision, as the name suggests, it just set the precision of the numeric data only. ओके, तो ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को शो करता है. अच्छा, ये जो सेट W है ये हमारे पास नॉट ओनली फॉर न्यूमेरिक डेटा बट इट कैन ऑल्सो डिस्प्ले फॉर the character or string data as well. For example, if I display before this cout, अगर मैं यहाँ पर डिस्प्ले करूँ cout setW 6 and then any some string like कुछ भी मैं टाइप कर सकती हूँ. दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि रोल नंबर एंड ग्रेड मे बी. So yeah, no, what we can see that price, quantity, total. So maybe price and then again setW. So for this setW, we'll just make sure, since we're writing quantity, so we'll just make sure we write quantity. So we'll just leave 10 spaces for this, and then type quantity, and then again setW. For total we'll leave 6 spaces, and then total. Let's see if it works, if it is lines or not. I'm sure it is not, but let's see. Okay, so I think I have done something wrong. I have just ignored semicolon. Okay, now you can see since I didn't add endl after this total, so the number is displayed just after the total, so it just has a line. But the main purpose is to show that this has it works for string data as well. It just does not only work for numeric data, but it also works for string data as well. Okay, so this was the purpose of showing it. After this, we'll talk about the set precision command. The set precision command only works for the numeric data, and it works for, let's talk about the significant digits, and then we'll say what is this set precision is. So let's read. The total number of digits that appears before and after the decimal point are called significant digits. तो किसी भी हमारे पास जो डेटा होता है उसमें significant digit का मतलब है कि it holds some value. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल if I say कि मेरे पास ये जो एग्जाम्पल थी यहाँ पर 720, तो ये 720 इसके 3 डिजिट्स जो हैं वो significant डिजिट्स हैं. ठीक है, if I write this over here, तो यहाँ पर भी 3 डिजिट्स ही इसके सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई नॉन ज़ीरो कोई वैल्यू आती है यहाँ पर, तो वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट के अंदर ही आ जाता है. ठीक है, यहाँ पर भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, यहाँ पर जो है वो 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं 2, और यहाँ पर जो है वो 1 2 3 जो है 3 अगेन 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं. सो व्हाट इज डन, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ शोइंग इज कि हमें पता चले कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होते हैं. सो बेसिकली सेट प्रिसिजन हमारे पास करता क्या है,
it controls the number of significant digits with which floating point values are displayed by set precision manipulator. यानी कि अगर हमें कंट्रोल करना हो कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें अपीयर हों, अगर हमें कंट्रोल करना है इस चीज़ को, तो हमें यूज़ करना होगा सेट प्रिसिजन की कमांड. यानी कि जिस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि हमारे पास यहाँ पर ऑल्दो द सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर 3, बट हेयर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव मेड द सिग्निफिकेंट डिजिट्स टू बी 2. ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने 3 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर में कन्वर्ट कर दिया. इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर जो है वो हमारे पास आ गया है. तो इस तरह से हम लोग जो है वो सेट प्रिसिजन की कमांड लगाकर चेंज कर सकते हैं कि कितने सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर जो है वो हमें उस फॉर्म में शो हो. द एक्चुअल नंबर विल रिमेन सेम, दैट इज 720, बट इट विल जस्ट चेंज द स्टाइल ऑफ इट्स डिस्प्लेइंग. ओके, सो आफ्टर दिस let's see with an example. Okay, so the number is in this program there is a double type of data, that is quotient number 1 and number 2. So we have two data, 132.364 and 226.991. So what we are doing is basically dividing number 1 with number 2. So we'll just have a number in floating point data, right? So in floating point data we'll have a number. So if we set different set precisions for this, first we set 5 and then let's just perform this experiment and then we'll see what happens. ओके, सो इस प्रोग्राम को अगर हम रीड करें तो यहाँ पर दो नंबर्स जो हैं वो दिए हुए हैं प्रोग्राम में, नंबर 1 एंड नंबर 2. इट इज़ सम रैंडम नंबर्स एंड देन व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर जस्ट डिवाइडिंग नंबर 1 विद नंबर 2 एंड वील हैव अ नंबर विच विल बी सेव्ड इन क्वोशिएंट वेरिएबल. ठीक है, तो अब हम सबसे पहले हम फर्स्ट कमांड में क्या कर रहे हैं, वी आर जस्ट सिंपली डिस्प्लेइंग क्वोशिएंट. वट एवर द वैल्यू ऑफ क्वोशिएंट इज विल बी सिंपली डिस्प्लेड विदाउट एनी टाइप ऑफ सेट प्रिसिजन कमांड. ओके, so let's see what happens. Okay, and in the second part what we are doing is we are setting the precision of 5. That means only 5 significant digits will appear. Okay, and then 4 3 2 1. Okay, इस तरह से हम लोग significant digits जो हैं वो significant digits जो हैं वो कम करते जा रहे हैं, precision कम करते जा रहे हैं. So let's see what happens. Okay, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो एक्चुअल नंबर था वो क्या था, जो हमारा फर्स्ट डिस्प्ले था, हमारा एक्चुअल जो भी नंबर आंसर आया वो डिस्प्ले हो गया 4.91877. अच्छा, अगर हम एक्चुअली इसको डिवाइड करें इस नंबर को यूजिंग कैलकुलेटर, लेट्स सी व्हाट वी गेट. 132.364 divided by 26.91. अच्छा, अब अगर हम देखें तो ये जो है वो बहुत सारे डिजिट्स आ गए हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो डिस्प्ले हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं वो अपीयर हो रहे हैं. यानी कि फिर काउंटेड 4 2 1 2 3 4 5 6. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर हम कोई भी सेट प्रिसिजन की कमांड नहीं लगाते और नॉर्मली जब नंबर को डिवाइड करके डिस्प्ले करवाते हैं, देन इट विल नॉट डिस्प्ले द होल नंबर. इतने सारे नंबर्स को डिस्प्ले नहीं करेगा. बाय डिफ़ॉल्ट द सेट प्रिसिजन वैल्यू इज सेट टू बी 6 डिजिट्स. ठीक है, तो ये आउट ऑफ दिस मैनी डिजिट्स इट हैज़ ओनली सिलेक्टेड 6 डिजिट्स. तो यहाँ पर 7 के बाद यहाँ पर इसने इस चीज़ को राउंड ऑफ कर दिया है. ठीक है, 6 को राउंड ऑफ करके 7 बनाकर आंसर दे दिया है. इसका मतलब क्या है कि अगर हम सेट प्रिसिजन की कमांड नहीं यूज़ करते तो द नंबर विल बी डिस्प्लेड will only have 6 significant digits. Okay,
So what if I write 5 set precision numbers? So what it will do, it will simply round off the last number. ठीक है, लास्ट डिजिट जो भी होगा 7 था तो इसको उसने 8 बना दिया. ठीक है, 8 तक स्टॉप करके 7 को 8 करके इसने राउंड ऑफ कर दिया. एंड देन फॉर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स इट हैज़ सिंपली राउंड ऑफ, यानी कि डेटा को वो राउंड ऑफ करता जा रहा है. ठीक है, ये देखें राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पर मजीद राउंड ऑफ कर दिया, यहाँ पर फॉर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर, ये देखें यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं और यहाँ पर फाइनली 1 सिग्निफिकेंट डिजिट. So the actual data was 4.91876625 something, but it will only by default it will only show the 6 significant digits. ठीक है, जैसे यहाँ पर दिखाया है. ठीक है, by default. And if we type some significant digit value, so it will just convert it. For example, if we just change it from 6 to 7, let's see what happens. हम 5 से हम लोग 7 कर देते हैं. सो यू कैन नाउ सी कि हमारे पास अब इसने 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखा दिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि हमने जब कोई भी सेट प्रिसिजन सेट नहीं की थी, यहाँ पर एट दिस पॉइंट हमने कोई भी सेट प्रिसिजन की वैल्यू सेट नहीं की, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये 6 significant digits दिखा रहा है. ठीक है, but if we set some value of the significant digits or this of set precision, then it will just display the numbers to the value whatever it has written. 7, तो यहाँ पर 7 है, 1 2 3 4 5 6 7. ठीक है, okay, so this is 7 and then 4 significant, 3 significant, 2 significant, 1 significant digit. So this is what set precision does. It just set the number of digits, number of significant digits to be displayed on the screen. ठीक है, now we'll see some variations in this. Okay, so if the value of a number is expressed in fewer digits of precision, then the specified set precision specified by set precision, the manipulator will have no effect. यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि अगर हमारा जो नंबर है वो कम डिजिट्स में डिस्प्ले हो रहा है और जो है वो सेट प्रिसिजन की वैल्यू हमने ज़्यादा रख दी है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो नंबर है यहाँ पर, इसकी बजाय हम इसको कर देते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं. सो नाउ वी ऑल नो व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज सिंपल 2.5. सो अब जो है, लेकिन हमने सेट प्रिसिजन रखी हुई है, वो 7 रखी हुई है, 4 रखी हुई है, 3 रखी हुई है. तो इन दिस सिनेरियो जब हमारे पास सेट प्रिसिजन की वैल्यू ज़्यादा हो और जो एक्चुअल आउटपुट हो वो एक्चुअल डाटा हो वो कम नंबर से पे रहता है, तो हमारे पास उस वक्त सेट प्रिसिजन की वैल्यू जो होगी वो सेट प्रिसिजन जो होगा उसकी कमांड जो होगी वो इग्नोर हो जाएगी. जैसे सेट डब्ल्यू इग्नोर हो गई थी, वैसे यहाँ पर सेट प्रिसिजन इग्नोर हो जाएगी. जैसे ये देखें, ये यहाँ पर जब मैंने सेट प्रिसिजन की कमांड 7 रखी तो सेट प्रिसिजन इग्नोर हो गया ऑफ कोर्स, क्योंकि जो डाटा था वो 2.5 था. सिंपली इट जस्ट कंटेन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट. यहाँ पर इग्नोर हो गई, यहाँ पर इग्नोर हो गई, यहाँ पर इग्नोर हो ना हो एक ही बात है, क्योंकि यही डाटा है और यही सेट प्रिसिजन है, तो सेट प्रिसिजन डालें ना डालें एक ही बात है. यहाँ पर अलबत्ता जो है वो सेट प्रिसिजन की वैल्यू ने काम किया है कि जो एक्चुअल वैल्यू थी वो 2.5 डाटा था, वो अब वो 2 ही रह गया है. ठीक है, यानी कि राउंड ऑफ 5 को राउंड ऑफ नहीं हुआ. अगर आपको 2.6 नंबर होता तो येस इट विल हैव सम राउंड ऑफ फिगर लाइक 3. ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन वी हैव अ सेट प्रिसिजन वैल्यू ग्रेटर देन द एक्चुअल डेटा. ओके, सो लेट्स सी अदर थिंग्स. ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल कि हमारे पास ये वाला डेटा है 28.92786786. सो सेट प्रिसिजन 3 की थी, तो what it will do is it will just display 28.9. So yes, it has done. So now 21 set precision 5 की है, so it will ignore this set precision and will just display 21 as it is. And then 109.5 set precision 4, it will just have same number, same significant digits, same significant digit value, so same output. Lesser precision value and the more number, so it will just round off the figure to lesser value. So 34.2 round off होकर 34 ही रहेगा. ठीक है, now they are saying that
setWn and setPrecision कैन बोथ बी यूज इन द सेम प्रोग्राम, यानी कि हम लोगों ने जिस डाटा में सेट प्रिसीजन यूज़ कर लिया है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम लोग उसमें सेट डब्ल्यू यूज़ नहीं कर सकते। यानी कि जो हमारा ये डाटा था, अगर हम वही डाटा दोबारा से लिखते हैं, सम रैंडम नंबर डिवाइडेड बाय 21 पॉइंट दिस सम रैंडम आउटपुट। सो अगर हम इसको सेट डब्ल्यू कमांड के साथ डिस्प्ले करना चाहें, यानी कि सेट डब्ल्यू कमांड के साथ डिस्प्ले करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर जो है वो सेट डब्ल्यू इंसर्ट कर देते हैं। सेट डब्ल्यू 15, सो नाउ यू कैन सी कि मेरा सेट डब्ल्यू इसके बाद आ रहा था, दूसरे वाले सी आउट के बाद 15, सो इट हैज़ जस्ट लेफ्ट 15 स्पेसेस फॉर इट एंड स्टार्टेड टाइपिंग प्रिंटिंग फ्रॉम द लास्ट स्पेस। ठीक है, इस तरह से वी कैन यूज ऑल द मैनिपुलेटर्स एट वंस एज वेल। वी जस्ट शुड नो दैट वेयर द एक्चुअल मैनिपुलेटर फिट्स। ठीक है, जहाँ वो फिट करेगा हम लोग वहीं पर उस मैनिपुलेटर को यूज़ कर लेंगे। सो दीज टू मैनिपुलेटर्स कैन बी यूज साइमल्टेनियसली इन जस्ट वन प्रोग्राम। All the data after adding set precision n will be converted. So set precision can be added just once. अच्छा, now this is very important कि हमारे पास अगर हम डेटा set precision हमें पता है, अगर for example हम सारे डेटा की set precision जो है वो हमें सेम रखनी है to some value like 4, ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम set precision जो है वो बार बार लिखें। unlike set w हमें बार बार लिखना पड़ता था। यहाँ पर अगर हमें पता है कि फॉर एग्जांपल पूरी स्क्रीन का मुझे पता है कि डेटा जो है वो मुझे चाहिए 4 सेट प्रिसीजन वैल्यू जो है वो 4 हो सबकी, मतलब कि सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो सिर्फ 4 डिस्प्ले हो। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी टू टाइप सेट प्रिसीजन अगेन एंड अगेन। व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली टाइप ओवर हियर, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर भी 4 मैं इसको इग्नोर कर देती हूँ, यहाँ मैं हटा देती हूँ। अभी देखें, अगर हमारे करंट डेटा अगर हम लोग देखें तो सबकी अलग अलग सेट प्रिसीजन की वैल्यू है। अभी मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि ऊपर इसकी तो बाय डिफ़ॉल्ट 6 नंबर से डिस्प्ले होंगे, इसमें जो है वो 7 सेट प्रिसीजन वैल्यू रखी है, और फिर उसके बाद सेट प्रिसीजन 4 एक बार लिखा, एंड देन फॉर आफ्टर जितने भी ये डेटा जो बार बार डिस्प्ले हो रहा है इससे मैंने कोई सेट प्रिसीजन नहीं लिखा। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब ये देखें, एट फर्स्ट सी आउट देयर वाज नो सेट प्रिसीजन कमांड, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसने कितने सेट प्रिसीजन डिजिट्स लिए, सेट प्रिसीजन वैल्यू ली 6 ली, और 6 सिग्निफिकेंट डिजिट्स डिस्प्ले कर दिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्योंकि कोई भी सेट प्रिसीजन की कमांड यहाँ नहीं थी। उसके बाद सेट डब्ल्यू 15 स्पेसेस लीव कर दी, उसके बाद सेट प्रिसीजन 7, तो सेट 15 स्पेसेस लीव करने के बाद 7 सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, उसके बाद मैंने एक बार लिखा सेट प्रिसीजन 4। ठीक है, उसके बाद मैंने तो 4 और इसके बाद ये लिखा, और उसके बाद मैंने सेट प्रिसीजन बार बार नहीं लिखा। नाउ व्हाट विल हैपन इज दैट ऑल ऑफ द डेटा कमिंग आफ्टर दिस सेट प्रिसीजन विल हैव द वैल्यू ऑफ सेट प्रिसीजन विद दिस वन। ठीक है, यानी कि इस सेट प्रिसीजन के बाद जितना भी डेटा आएगा उसकी वैल्यू यही सेट प्रिसीजन रहेगी। यानी कि आप देख सकते हैं कि सबकी सब डेटा की वैल्यू जो है 4 ही है। ठीक है, ओके, तो अगर हम यहाँ पर ये 4 भी ना लिखें, इसको भी अगर हम इग्नोर कर दें, ठीक है, 7 लिखा है तो बाकी जितने भी डेटा आएंगे वो 7 आएंगे। यानी कि सेट प्रिसीजन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है अगर हमारा सब डेटा के लिए एक ही सेट प्रिसीजन की वैल्यू है। सेट डब्ल्यू को अलबत्ता बार बार लिखने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन सेट प्रिसीजन को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सो दिस वाज द पॉइंट ऑफ द एक्सप्लेनेशन। ठीक है, यहाँ पर देखें सबकी वैल्यू जो है 7777 आ गई है, क्योंकि एक बार सेट कर दी है। ठीक है, okay, so after this we have another command, formatting command, that is called fixed.
So now what this fixed do? Set precision converts number into scientific notation when precision value is small and the number is bigger. जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास अगर प्रिसीजन वैल्यू जो है वो हम यहाँ पर 2 कर देते हैं, ठीक है, और जो हमारा एक्चुअल नंबर है वो कुछ बड़ा है, करके देखते हैं. ओके, नाउ यू विल सी, यू हैव सीन दैट हमारा एक्चुअल नंबर जो था वो 158.563, यानी कि बहुत बड़ा एक नंबर है. तो उसमें से लेकिन नंबर जो है वो बहुत बड़ा है. अब उसको अगर हम लोग कम से कम भी करेंगे, सब प्रिसीजन की वैल्यू बहुत कम है और वो राउंड ऑफ करके भी एक्चुअल वैल्यू जो है वो हमारे पास नहीं आ पा रही, यानी कि नंबर बहुत सेट प्रिसीजन की वैल्यू बहुत छोटी है और जो हमारा नंबर है वो बहुत बड़ा है. तो what it will do is that since it cannot round off all the numbers, यानी कि यहाँ तक तो राउंड ऑफ कर देगा, पॉइंट्स के बाद जितना भी डेटा है उसको वो राउंड ऑफ कर देगा, लेकिन इसके बाद इसको नहीं कर सकता. लाइक 158 जो है वो लेट से मैक्सिमम राउंड ऑफ होकर 159 हो जाएगा इफ़ वी सेट द नंबर एज 3. फॉर एग्जाम्पल लेट मी जस्ट शो यू विद एन एग्जाम्पल. कंट्रोल सी, कंट्रोल वी. अच्छा, यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू जो है वो 3 रख कर देखती हूँ, ठीक है. तो देखते हैं. अच्छा, ये देखें, तो ये देखें मैक्सिमम जो राउंड ऑफ हो सकता था वो 3 डिजिट्स तक हो गया राउंड ऑफ. 159 जो है वो 158.563 जो है वो 159 हो गया व्हेन वी सेट द सेट प्रिसीजन 3. मैक्सिमम राउंड ऑफ हो गया. अब इससे ज़्यादा वो राउंड ऑफ नहीं हो सकता. ये लाइक 159 जो है वो राउंड ऑफ होकर अगर मुझे करना हो तो वो 15 नहीं बन सकता, ठीक है. 159 15 में ज़ाहिर डिफरेंस है. सो व्हेन इट कैन नॉट फर्दर राउंड ऑफ द नंबर, what it will do is it will display the number as a scientific notation. Scientific notation हमें पता है कि एक्सपोनेंट की वैल्यू हम लिखते हैं हम नंबर से. तो what it has done is round off the number 1.6 एक्सपोनेंट 02. अब देखें सेट प्रिसीजन की वैल्यू 2 थी, तो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो 2 है, 1 2, बट इट हैज़ जस्ट शोन एक्सपोनेंट 2. इसका मतलब क्या है कि ये नंबर जो है वो बड़ा है, 160 समथिंग बन जाएगा, 1600 बन जाएगा. सो 159 इज नियरर टू 1600, दैट मीन्स आवर डेटा इज परफेक्टली राउंडेड ऑफ. ठीक है, तो इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में हमारा डेटा जो है वो कन्वर्ट हो जाता है. अगर कब, जब हमारे पास मैक्सिमम राउंड ऑफ जो है वो हो चुका हो और नंबर सेट प्रिसीजन का कम हो एक्चुअल डेटा से. ठीक है, ये देखें एक्चुअल डेटा जो है वो 159 है, दैट इज 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, और इससे मज़ीद ये राउंड ऑफ नहीं हो सकता. लेकिन जो सिग्निफिकेंट जो सेट प्रिसीजन की वैल्यू है वो 2 है, तो इसलिए उसने क्या किया, इसको चेंज कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में. ठीक है, तो अब अगर फॉर एग्जांपल यूज़र को साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी वैल्यू जो है वो नहीं चाहिए, ठीक है, यूज़र चाहता है कि कोई भी वैल्यू जो हो वो साइंटिफिक नोटेशन में ना शो हो, प्रॉपर डेसिमल में शो हो. जैसे आपने देखा होगा अक्सर कैलकुलेटर्स में वैल्यू का जो रिजल्ट है हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में आ जाता है. सो देयर इज़ अ की इन आवर कैलकुलेटर जिसको हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो साइंटिफिक नोटेशन का जो डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में. तो अब वो हमारे पास उसके लिए वो जो की होती है बेसिकली दैट इज़ फिक्स्ड कमांड. ठीक है, तो वो फिक्स्ड कमांड जब हम लोग यूज़ करते हैं तो हमारा जो डेटा होता है वो कन्वर्ट हो जाता है इसमें साइंटिफिक नोटेशन से नॉर्मल आ जाता है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर एग्जांपल शो की हुई है कि हमारे पास सी आउट सेट प्रिसीजन 2 दिस नंबर. ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल नंबर है. ठीक है, वो डिस्प्ले होगा विद सेट प्रिसीजन दिस. अब सेट प्रिसीजन कम है, नंबर बड़ा है. ठीक है, सो इट हैज़ कन्वर्टेड दिस नंबर इनटू साइंटिफिक नोटेशन लाइक दिस 1.2 एक्सपोनेंट 2. अब मैं चाहती हूँ कि साइंटिफिक नोटेशन ना आए, मैं चाहती हूँ कि नंबर मेरा होल नंबर में ही डिस्प्ले हो नो मैटर व्हाट. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल ऐड द कमांड दैट इज कॉल्ड फिक्स्ड. ठीक है, लाइक आई हैव डन देयर सी आउट सेट प्रिसीजन फिक्स्ड. अब अगर फॉर एग्जांपल अब सिनेरियो में क्या होगा कि फिक्स्ड कमांड जो होगी वो रूल आउट कर देगी, ओवर रूल कर देगी इसको सेट प्रिसीजन, यानी कि अब सेट प्रिसीजन की कोई वैल्यू कोई इंपॉर्टेंस नहीं रही, नंबर एज इट इज़ डिस्प्ले हो जाएगा. लेकिन अब डिफरेंस क्या आएगा, अब सेट प्रिसीजन का जो नंबर होगा 2 वो
सिग्निफिकेंट डिजिट काउंट होगा आफ्टर डेसिमल पॉइंट, यानी कि जो 2 था एक्चुअल डाटा क्या था 123.456। तो अब ये जो सेट प्रिसीजन, इफ इट इज रिटन विद फिक्स्ड कमांड, आई रिपीट, if the command set precision is written with fixed command, then the number in the set precision will be counted after decimal point. It will count the significant digits after decimal point. यानी कि ये 2 है तो ये significant digit 2 इसने कर दिया। ठीक है, इसमें इसको शो करते हैं। ठीक है, तो अब ये हम इसको डिस्प्ले करते हैं। अब ये देखें, तो ये हमारे पास 123.46 आ गया। अब फॉर एग्जांपल मैं सेट प्रिसीजन जो है वो 1 कर देती हूँ। ठीक है, तो ये देखें 123.56 आ गया। ठीक है, what if I write it 0? Let's see if it works or not. So it will just 0 significant digits after point, so it will just become 123. ठीक है, अभी फिक्स्ड अगर सेट प्रिसीजन के साथ यूज़ होगा तो जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स सेट प्रिसीजन के काउंट होंगे वो आफ्टर डेसिमल पॉइंट्स काउंट होंगे। ठीक है, सो दिस इज द रूल ऑफ सेट प्रिसीजन और फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, आई रिपीट, फिक्स्ड क्या करता है कि हमारे पास अगर डेटा साइंटिफिक नोटेशन में है तो उसको नॉर्मल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अगर नहीं है साइंटिफिक नोटेशन में तो ये नॉर्मली वैसे ही रहता है, कोई काम नहीं करता। देन द अदर कमांड इज शो पॉइंट। सो बेसिकली शो पॉइंट मीन्स कि अगर हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल 720 है, ठीक है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा था, ये हमारा डेटा था 720। अगर मैं शो पॉइंट यूज़ करूँ तो मेरे पास ये पॉइंट ज़रूर शो करेगा विद 0, ज़ाहिर है 720.0 शो कर देगा। शो पॉइंट मीन्स टू शो द decimal point no matter what, even if it exists, even if it does not exist, you have to show the decimal point. This is what show points means. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये नंबर था 123.446, दिस सेट प्रिसीजन x, अब ये ऐसे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, अब ये नंबर 456 था, 0.0 था, तो ये 0 से डिस्प्ले ही नहीं किया। अब अगर शो पॉइंट में ऐड कर दूंगी तो क्या करेगा, वो 0.000 भी ऐड कर देगा एंड मेकिंग इट टू द मैक्सिमम ऑफ 6 नंबर्स। क्योंकि ये सेट प्रिसीजन के साथ यूज़ किया है, सेट प्रिसीजन मैंने एक बार यूज़ कर दिया दैट इज 6, तो इसका मतलब है कि 6 जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स को काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, सो इस तरह से दिस वर्क्स। इवन इफ द नंबर डज नॉट हैव डेसिमल पॉइंट, इट विल शो द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, और अगर सेट प्रिसीजन के साथ यूज़ किया तो सेट प्रिसीजन की जितनी वैल्यू होगी वो उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक 0 पॉइंट शो किया करेगा। अगर सेट प्रिसीजन शो नहीं लिखा, सो इट विल सिंपली राइट इट ओवर देयर। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई फॉर एग्जांपल डोंट राइट सेट प्रिसीजन एंड आई सिंपली टाइप शो पॉइंट। शो पॉइंट भी सेट प्रिसीजन की तरह एक बार ही लिखना होता है। अगर आप एक बार भी लिख देंगे, उसके बाद जितने भी कमांड्स आएंगे, जितना भी डाटा डिस्प्ले होगा, उसके बाद वो सारा शो पॉइंट के साथ वो डिस्प्ले करेगा। शो पॉइंट एंड देन द नंबर इज फॉर एग्जांपल 42। ठीक है, हम देखते हैं इसको कि क्या कहता है। 42 to 7, ओके। So there was no set precision added, so it has shown this number. ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं सेट प्रिसीजन ऐड करती हूँ टू हैव द नंबर सेट प्रिसीजन 1। ठीक है, it is not again showing it, I'm not sure.
let's see if I'm writing it correct or not. Okay. So I'll just change it to 6 maybe. It works then. Okay, I think there is some problem with the data. What if I write set point? Let's see. Okay, let me try just running this simple example. I think right at this point my show point is not working. So it is working now. Let's see what was the problem then. Okay, so okay, so let's just change the value data. See out. Show point, and then and if we write set precision and if I write 6 over here. I'm not sure if why it is not working for it separately. Maybe I'm making some mistake while typing it. So basically you will learn that when you will be doing, you will not have any problem, I'm sure for that. So basically set show point shows the point even if there is no point in the data, like this is 456. So if the show point is added, then it will show the point, and then after this the significant digits. Okay, the number of it will add the 0. So this is the purpose of show point. It will just add the point no matter what, even if there is a point, even if there is not a point. Okay. So after this we'll have other manipulators. They are very simple manipulators. These are called left and right manipulators. Left and right manipulators क्या करते हैं, बेसिकली हमारे डेटा को लेफ्ट और राइट अलाइन करते हैं. ठीक है, कैसे अलाइन करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हम सेट डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग सेट डब्ल्यू यूज़ कर रहे होता है तो हमारा जो डेटा होता है वो राइट साइड पे जस्टिफाई होता है, राइट जस्टिफाइड होता है. ठीक है, यानी कि राइट साइड से अलाइन हो जाता है. बट इफ़ वी ऐड लेफ्ट मैनिपुलेटर विद इट, सो ये क्या करेगा, हमारे पास ये लेफ्ट साइड से लिखना स्टार्ट कर देगा. फॉर एग्जाम्पल if I first write this, okay, so what is happening is that it is set w 10 यानी कि 10 spaces leave करें and then align it on right side. ठीक है,
ऑल्दो इस राइट का अब यहाँ पर अब कोई फ़ायदा है नहीं. क्यों फ़ायदा नहीं है? बिकॉज ऑफ कोर्स जब सेट डब्ल्यू सेट लगते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे डाटा को राइट साइड पे ही अलाइन करता है. ठीक है, तो देयर इज़ नो पर्पस, बट स्टिल वी आर एडिंग इट एंड वी विल से चेंजेस व्हाइल चेंजिंग द प्रोग्राम. अब ये देखें कि हमारा जो डाटा है वो राइट साइड पे अलाइन हुआ, यानी कि 10 स्पेसेस छोड़ी और यहाँ राइट साइड पे लिखना स्टार्ट किया, एंड देन अगेन 10 स्पेसेस छोड़ी और राइट साइड पे लिखना स्टार्ट किया. एंड देन फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक डाटा को राइट साइड पे अलाइन करते हैं और एक डाटा को लेफ्ट साइड पे अलाइन करते हैं. फॉर एग्जांपल इसको मैं सेकेंड स्टेटमेंट को लेफ्ट साइड पे अलाइन करती हूँ और इसके बाद मैं एंडल डाल देती हूँ. नहीं, बल्कि एंटर के बगैर ही कर लेते हैं. ओके, अब आप देखें कि एक डेटा जो था वो राइट साइड पे अलाइन हुआ और दूसरा लेफ्ट साइड पे था, तो वो वहीं से स्टार्ट हो गया. ठीक है, बाकी यहाँ पर उसने स्पेसेस छोड़ दी होंगी. सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर इसको जो है वो राइट कर दूँ एंड इसको लेफ्ट कर दूँ. ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला क्या करेगा, वो यहाँ से फर्स्ट जहाँ पॉइंट से लिखना स्टार्ट कर देगा और राइट वाला स्पेस देकर वहाँ से लिखेगा. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पेस जो है वो बढ़ गई है कितनी ज़्यादा, क्योंकि इसकी भी स्पेस है और इसकी भी स्पेस है, दोनों की स्पेसेस एक साथ ऐड हो गई. ये लेफ्ट लाइन है और ये राइट लाइन है. नाउ लेट्स यूज these left and right aligners without setw command and we'll see what happens. अच्छा, तो फर्स्ट जो था वो डेटा जो था वो लेफ्ट अलाइन था, तो लेफ्ट स्टार्टिंग से पॉइंट से स्टार्ट हो गया. सेकेंड डेटा जो था वो सेट डब्ल्यू के साथ राइट अलाइन था. सेट डब्ल्यू के साथ राइट अलाइन होने का मतलब क्या है कि वो क्या करेगा कि 10 स्पेसेस छोड़ेगा और यहाँ पर राइट अलाइन कर देगा. एंड इफ आई यूज left with the left aligner, लेफ्ट को यूज़ करते हैं, मैं इसको हटा दूँ अगर. ठीक है, सो मेरे डेटा जो है वो एक साथ हो जाएगा क्योंकि दोनों लेफ्ट लाइन थे और देयर वाज नो सेट विथ कमांड रिटन. ठीक है, अब अगर मैं एक को लेफ्ट और एक को राइट करूं तो क्या होगा? अब भी कोई फर्क नहीं पड़ा. क्यों? क्योंकि वो राइट अलाइन तो हो गया होगा, लेकिन क्योंकि सेट डब्ल्यू कोई कमांड कोई स्पेस हम लोगों ने उसके लिए विड्थ जो है वो स्पेस नहीं छोड़ी हुई थी, तो उसकी वजह से वो जितनी जो स्पेस थी उसी में वो जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो गया. ठीक है, तो दिस इज व्हाट हैपेंस. दिस इज द पर्पस ऑफ लेफ्ट एंड राइट. दे आर नॉट वेरी कॉमनली यूज्ड, बट कभी कभी ये जो है वो यूज़ हो जाता है जब हम लोग सेट डब्ल्यू जो है वो हम चाह रहे हो कि हमारे टेबल में अगर हम टेबल बनाना चाह रहे हैं और टेबल में हम चाहते हैं कि जो हमारी डेटा लिखा हुआ है वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, राइट साइड पे ना लिखा हुआ है. जबकि हम जब सेट डब्ल्यू यूज़ करते हैं तो राइट साइड पे लिखा आता है. सो दिस वॉज द पर्पज ऑफ लेफ्ट राइट मैनिपुलेटर्स, राइट? Okay, so let's see the summary of all these manipulators. So first we talked about setw. setw established the print field of n spaces. whatever जितना हमने यहाँ पे नंबर टाइप किया होगा उतनी स्पेसेस लीव करता है और n से डेटा प्रिंट करना स्टार्ट कर देता है. ठीक है, and depending upon if it is being used with left or right manipulator. If it is used with left manipulator, then it will not start from the last, it will start from the first. Okay, and then if we have fixed just work for if we have any number written in scientific notation, it will convert it into the floating point number. ठीक है, अगर कोई भी नंबर यहाँ पे साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ होगा तो वो उसको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर देगा. शो पॉइंट क्या करते हैं हमारे पास? अगर पॉइंट जो है वो है नहीं है डेटा में, अगर सिंपल इंटीजर डेटा भी है, किस तरह का डेटा भी है, उसमें वो पॉइंट लगाकर हमारे पास नंबर जो है वो शो करेगा. ठीक है, अगर नंबर है पॉइंट है तो पॉइंट शो करेगा, अगर पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा देगा. ठीक है, और अगर उसके साथ मैंने सेट प्रिसीजन लिख दिया तो जितनी प्रिसीजन होगी उतनी वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो डिस्प्ले करेगा. सेट प्रिसीजन मीन्स टू शो द नंबर n number of significant digits. Left right, I have just explained it. It just align the data on the left or right respectively. So this was about output manipulators.
ठीक है. So if you have any query you can ask me. Till then, till we meet on the next questions. So in the next class we are going to talk about the conditional statements. Okay, till then, Allah Hafiz.